तो उसका डिस्टर्ब इस बार पूरे एक हफ्ते में 300 क्वेश्चन करने पड़े तो बात नहीं। कोई 300 हो जाए ना, 301 तो 45 से करते थे वो लोग, मतलब 5 रुपए उतर जाएंगे, 40 रुपए मिल जाएंगे नेट। रोज 50 क्वेश्चन का एम बनाना पड़ता। आ गया सवाल। क्या है ना, लगा दी मीटिंग? हाँ लगा। ठीक है, हट जा दिखाओ। मीटिंग स्टार्ट करनी हो तो आ गया जूम। उसको दिख तो रहा है ये वेदर क्यों आने लगा है यार? कहाँ पे? आपने नीचे कुछ क्लिक करा नहीं होगा। नहीं नहीं, हटा देंगे बाद में, चलो रुक तो जा 2 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। 1 मिनट। हाँ सर। देखो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम देखना। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? खानी है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ दिखा, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है हाँ सर। हाँ जिसमें मेरी फोटो दिख रही है, मेरी फोटो दिख रही है, दिख रहा है? नहीं नहीं सर। हाँ, वो एक्चुअली वो अलग चल रहा है ना, अनअकैडमी का। एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखना, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखो मैं दिन भर बैठा रहता हूँ इस पे, ठीक है? सुनो, हाँ सर। तो जैसे मैं ये जो मैं नीट के ही वो ले रहा हूँ डाउट सुन के बच्चों के। हाँ हेलो, सर। तो अब देखो दिख रहा तुम्हें स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा है। अब दिख रहा है स्क्रीन क्लियर? हाँ सर दिख रहा है। अब मेरी फोटो दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। हाँ साइड में नीचे। हाँ हाँ, वहाँ वो ऐसे ही आता है, ठीक है? अनअकैडमी लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ, और सुनो, बिल्कुल चुप रहना इसमें ना। हाँ हाँ सर। क्यों? उसका रीजन है कि रिकॉर्डिंग चलती है ना ये। हाँ सर। हाँ, बिल्कुल शांत रहना है, बस तुम तो क्वेश्चन देखना, और बीच में बोलना भी नहीं कि ये कैसे हुआ, ठीक है? बाद में पूछ हाँ लेना सर। चाहे तो। हाँ देखिए, सर। हाँ बस शांत रहना, बिल्कुल शांत, कीप क्वाइट, साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस है। अ मैन इज, look, a man is s equal to 9 meter behind the door of a train when it starts moving with acceleration 2 meter per second square. The man just at fall speed, how far how far he has to run, and after what time does he get into the train? Clear? So look, what is the situation? First we see, this is suppose door of the, this is suppose door of the train, and this is the position of man. This is door and this is the position of man, M. This is the position of man, and initially the gap between them is 9 meter.
s equal to 9 meter. When the gap is of 9 meter, 9 meter behind the road, when it starts moving with acceleration 2 meter per second square, the man just at the fall speed. Clear. Suppose the train is moving with acceleration 2 meter per second square given. Means train is starting from rest. Initial speed of train is at rest, means initial speed of train is 0. And suppose man is running with velocity Vm, constant velocity. And clearly he can catch the door only and only when velocity of man and velocity of train becomes equal, because the velocity of train is continuously increasing. So when he reaches the door, his velocity at least just equal to the velocity of train. Clear? And distance is 9 meter. So, but distance is 9 meter, not for this is the acceleration of man is 0. The acceleration of man is 0. And initial velocity of man is Vm with respect to train. So we will consider with respect to train. The displacement of man with respect to train, the velocity of man with respect to train initially, that is Vm, and acceleration of man with respect to train is acceleration of man minus acceleration of train, and acceleration of man is 0. So that is minus 2 meter per second square. And displacement of man with respect to train is 9 meter forward. And this is the and final velocity. This is the initial velocity of man with respect to train, and final velocity of man with respect to train. This is the final velocity of man with respect to train. That becomes 0. Otherwise, he can't catch the train. So, you know formula v square is equal to u square plus 2as. So v square is 0. We are applying the result with respect to train. V square is 0 and u square is Vm square. And minus 2a. A means 2 and s means 9. So v is coming 6 meter per second, because Vm square is 36. So Vm is 6 meter per second. This is the velocity of man with respect to ground. 6 meter per second. Now, how far does he has to run? Now, what is the time taken in this process? So, you know, well, time is same. So Vm means final velocity V dash m, that becomes 0 with respect to train. Vm dash is equal to V initial velocity of man with respect to train plus acceleration of man with respect to train into time. Time is same from all frame. So VMT, V dash MT is 0 and VMT we have already find out, that is 6, and acceleration of man with respect to train is 2 minus 2 into t. So time is 3 seconds. So after 3 seconds, he will just able to reach the door. So in 3 seconds, he will catch the train. So now question is, what time does he get into the train? So this is 3 seconds. And second part is how far he has to run. Means we have to find the distance traveled, actual distance traveled by the man. So distance traveled by man, we will take the man simple because the velocity of man is constant. So distance traveled by man is equal to velocity of man into time. Velocity of man into time, because the velocity of man is constant. So Vm is already we have find out 6 into time is 3. So means this distance he has to travel
just for catching the door. So 18 meter is the answer of the first part. The man will run 18 meter and time taken by the man to catch the door is 3 seconds. This is the solution of this problem. I think you have understood how to how to treat such type of relative velocity problem, and that is very important for your NEET exam. So be careful about this. Okay, thank you very much. I think doing well, just do well. हाँ वैष्णवी, समझ में आया? हाँ सर, नहीं आया? आ गया सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये सब जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हैं ना, हाँ सर। ये मैं अनअकैडमी का डाउट लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने अभी हाँ इसको ज्वाइन किया है, तो ये सारे अनअकैडमी के क्वेश्चन आते हैं। मतलब बच्चे जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ठीक है? तो तुम हाँ जब सर। बैठना हुआ करे, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लगता है इसमें। हाँ सर। तुम भी पूछो ऐसे तो मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ, ठीक है? हाँ सर। देखो एक नई प्रॉब्लम और आ गई, लेकिन अब बताऊंगा नहीं मैं, तुम्हें पढ़ाना है ना। हाँ सर। ठीक है, चलो उसको बाद में देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? फाइंड टी इन द स्ट्रिंग इफ, क्या लिखा है? इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। गलत क्वेश्चन, इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो कल हम कहां तक पहुंच गए थे, याद है? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस बाय टेम्परेचर। हाँ, तो क्या बताया था फॉर्मूला? वो ब्लू वाली पन्नी लेना। डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी गुड। यूनिट क्या थी उसकी? यूनिट क्या थी यूनिट? अरे पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बताई थी, लिखी नहीं थी क्या? हाँ सर। फिर हमने कई बार कहा कि जो चीज मैं बताया करूं उसको बिल्कुल याद होना चाहिए, कोई भी चीज गैप नहीं होनी चाहिए, तो बाद में बड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हें, तो तुम हमसे कहोगी इसे पढ़ाया नहीं हमें, ठीक है ना? हाँ सर। तो इसलिए ध्यान रखना आप, है ना? हाँ ठीक है। सर। तो क्या था अल्फा की यूनिट? पर डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड। तो कल मैंने एक वाला क्वेश्चन बताया था तुम्हें, ब्लॉक वाला। हाँ सर। ठीक है, अब सुनो। क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। कल मैं उस दिन मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दी थी। हाँ सर, बता दी थी। ठीक है, दो चार चीजें लिखवा रहा हूं, अब ये बिल्कुल याद रहनी चाहिए, ठीक है? और जो शीट दी थी वो तो हो गई ना तुम्हारी? हाँ सर, वो हो गई है। चलिए, दो तीन चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना है। हाँ अच्छा, सर। कंडक्टर में जो करंट होती है, करंट आती ना, करंट, हाँ सर। तो वो करंट कब आती है? जब आप उस कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। हाँ सर। कोई बैटरी लगा दो, और जब बैटरी लगेगी तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। हाँ सर, आ जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगेंगे, है ना? हाँ सर। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन। किसके अपोजिट? इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड की। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे ना। हाँ सर। अच्छा, तो ध्यान रखो, केवल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो करंट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ सर। लेकिन गैस में क्या होता है? गैस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होते ना? हाँ सर, होता है। अरे गैस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और सब हाँ मूव सर। करते हैं।
ठीक है। और लिक्विड में भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव को एनायन कहते हैं, याद है? हाँ सर याद है। हाँ, तो लिख लो, इन चीज को लिखो। इन कंडक्टर्स, स्टार मार्क करके लिखना है, हाँ सर। इससे याद रहे। तो इन अ कंडक्टर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है। हाँ सर। दूसरा पार्ट, दूसरा लिखो, वाइल इन सॉल्यूशंस यानी लिक्विड, वाइल इन सॉल्यूशन ड्यू टू बोथ आयंस, ड्यू टू बोथ आयंस। आयंस का मतलब है कैटायन यानी कि पॉजिटिव और एनायन यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव, यानी दोनों मूव करते हैं और दोनों के कारण करंट होती है, ठीक है। ठीक है। तीसरा पार्ट, एक बात ध्यान रखना, बैटरी क्या करती है? बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है, सही हाँ गलत? सर। सही है गलत है? बैटरी चार्ज प्रोवाइड मतलब वो ये करती है सर, बोलो। ऐसे रोटेट, मतलब मतलब क्या बैटरी चार्जेस को। चार्ज सप्लाई करती है कि नहीं? यस और नो में आंसर दो। हाँ सर करती है। इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से चार्ज कंजर्व नहीं हुआ, फिर तो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, यानी बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर है, इसका मतलब बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर है, इसका मतलब हाँ सर। बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर होता है क्या? नहीं। बताओ, बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर होता है कि नहीं? नहीं सर। क्या स्टोर होता है? हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कब चल रही थी? ठीक। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बैटरी जो पर नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है, केवल उसका जो सॉल्यूशन होता है केमिकल, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ध्यान रखना, कभी बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करती, क्या सप्लाई करती है? एनर्जी। क्या सप्लाई करती है? एनर्जी। तो लिखिए इस लाइन को, हमेशा याद रखो, ये छोटी छोटी बातें हैं। हाँ सर। अब बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, इट गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लिया? हाँ सर। एंड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश इन द कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर के अगर एंड्स को हम किससे जोड़ देंगे? किसी बैटरी से जोड़ देंगे, तो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हो जाती है, और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी है। क्या है वहां? एनर्जी है। यही तो कैपेसिटर में पढ़ा तुमने। हाँ सर। हाँ, तो बैटरी क्या करती है? चार्ज सप्लाई करती है या एनर्जी सप्लाई करती है? एनर्जी। एनर्जी। और क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती पोटेंशियल है, डिफरेंस। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो अगर हम बात करें, एक कंडक्टर बना लेते हैं, एक कंडक्टर बना लेते हैं, देखो, ये एक कंडक्टर बना लेते हैं, इस कंडक्टर के सिरों पर, इस कंडक्टर के सिरों पर एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। हाँ सर। ये बैटरी लगा दी गई। ये लग गई, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। कहां बन जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। कहां से कहां डायरेक्टेड होगी?
पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव होगी। हाँ सर होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब ये वाला जो लेंथ है हमने मान ली, इसकी जो लेंथ है वो L मान ली। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L। ठीक है, ये L लेंथ है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है बैटरी से वो V है, प्लस माइनस। ठीक है, और लेंथ L है, तो यहां पर होगा प्लस V और यहां पर होगा 0। होगा? अरे होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कल मैंने बताया था V/L होती है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो अपॉन जिस पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, तो V/L। ठीक है, हाँ सर। तो ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण एस्टेब्लिश हुआ? बैटरी के कारण हुआ ना। हाँ सर हुआ। बैटरी ने तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया और हाँ उस सर। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई अंदर। तो वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेशन में रोल है बैटरी का, क्योंकि बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, तो एनर्जी सप्लाई कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होती है? एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी। इसका मतलब है कि जो हमारी बैटरी है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। और एनर्जी किस कारण से प्रोवाइड करती है? क्योंकि जब बैटरी को जोड़ा जाता है कंडक्टर से तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है कि नहीं है? हाँ सर ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट लिखो, ध्यान रखना। सुनो एक चीज और देखो बोर्ड पे, ये वाला पोटेंशियल है V। ध्यान रखना, मैंने V लिख दिया ना, तो इस तरफ वाला है V और इस तरफ वाला है 0, क्योंकि ये 0 से कनेक्टेड है और ये V से कनेक्टेड है। दिख रहा? ये वाला हायर पोटेंशियल है लेफ्ट वाला और ये वाला लोअर पोटेंशियल है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। हाँ, तो लिखो तीसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, वास्तव में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे, जाएंगे ना। हाँ सर। तो हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंट के लिए पॉजिट्रॉन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रॉन जैसा, बस चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो यानी अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहा है तो पॉजिट्रॉन कहाँ जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। हाँ, तो देखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स बट फॉर कन्वीनियंट बट फॉर कन्वीनियंट बट फॉर कन्वीनियंट वी टेक पॉजिट्रॉन। एज्यूम्ड किया है, ये होता नहीं है, ये है ना। हाँ सर। जिससे हम ये मान सकते हैं भाई कि पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट नेचर का है, यानी पॉजिटिव है। लिख लिया? हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान देना, ये तुम्हारा पॉजिट्रॉन है। मान लो पॉजिट्रॉन बिल्कुल इस सिरे से स्टार्ट कर रहा है। किस सिरे से? बिल्कुल लेफ्ट के सिरे से। सही है? हाँ सर। तो इस पॉजिट्रॉन की एनर्जी कितनी है? तो एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन U, ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया सर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी लेके ये 0 पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है इसकी? बोलो, यहाँ पर कितनी एनर्जी? यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 0 है ना। हाँ सर। यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी EV थी और यहाँ पर एनर्जी 0 है, तो इसने अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी ना टकराने में। हाँ सर कर दी ना। तो लिखिएगा, सब लिखते हैं ना? बिल्कुल सब लिखते हैं ना, हर चीज कोई नहीं छूट दीजिए। हाँ सर। ठीक है, लिख लिया? देखो, हाँ सर। इस पॉइंट को तुम X मान लो और इसको मान लो Y। ठीक है, इन एंड्स को हमने क्या मान लिया? X एंड वाई। Y। तो लिखो
एट एक्स एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन, अब हम पॉजिट्रॉन लेके चल रहे हैं, एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज ईवी, क्या है, EV. एंड होल एनर्जी इज टेकन बाय कंडक्टर व्हेन इट रीचेज एट वाई, जब ये वाई पर पहुंचता है तो पूरी एनर्जी कौन खींच लेता है इसकी, कंडक्टर, हाँ सर. क्योंकि एनर्जी उसकी शुरुआत में कितनी, वो 20 रुपए लेके चला था, समझे, हाँ सर. क्या लेके चला था, 20 rupees. 20 रुपीज। तो बीच में ये कंडक्टर के लुटेरे जो है ना, वो छीनते गए उससे हाँ पैसे, सर. जब वो फाइनली घर पहुंचा वाई पर, तो पूरा हाथ खाली था उसका, हाँ सर. नहीं समझ में आया। आ गया सर. तो जब वो वाई पर पहुंचता है तो उसकी एनर्जी दोबारा जीरो हो जाती। अब क्या करता है, सुनो, बात सुनो, हाँ सर. अब इलेक्ट्रॉन तो बराबर चल रहा है ना, ये करंट तो बराबर हाँ चल सर. रही है, तो किसी तरह वो जीरो से यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ उसको कुछ नहीं खर्चा करना पड़ा, नहीं समझ में आया, यहाँ पर उसको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा, समझ में आया जी, ये भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। फिर क्या करता है, ये बैटरी के अंदर जाता है, क्या करता है, बैटरी के अंदर जाता है, ठीक है, हाँ सर. और बैटरी बैटरी इसको क्या करती है, बैटरी से कहता है भाई मुझे एनर्जी दे दो, क्या दे दो, एनर्जी. क्योंकि ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाना है ना इसे, और ये किसी तरह यहाँ हाँ पहुंच सर. गया, तो इसको दोबारा एनर्जी ई भी मिल जाएगी, तो फिर चला जाएगा, ये सुधरेगा हाँ थोड़ी, सर. ये बार बार इंतजाम करता है। तो यहां से ये बैटरी से एनर्जी लेता है, कौन, पॉजिट्रॉन, समझ में आया, हाँ सर. आ गया. और फिर ये दोबारा यहाँ पहुंच जाता है, फिर अपनी एनर्जी खर्च करके फिर यहाँ पहुंच जाता है, फिर ये भीख मांगता है, किससे, बैटरी की एनर्जी से, लेता है फिर पहुंच जाता है, समझे नहीं समझे। समझ गए सर. तो कौन एनर्जी वेस्ट कर रहा है, अपनी बैटरी कर रही है या ये पॉजिट्रॉन कर रहा है वेस्ट, पॉजिट्रॉन. अरे पॉजिट्रॉन तो मांग के काम चला रहा है ना, जिससे मांग रहा है उसकी एनर्जी खत्म हो रही है ना, हाँ सर. बैटरी की खत्म हो गई. फिर समझो बात को, पॉजिट्रॉन पे था क्या, हाँ सर. उसने जो लिया वो दे दिया, जिससे ले रहा है बराबर लेता जा रहा है, तो उसी की चीज, उसी की एनर्जी खत्म हो रही है, नहीं आ रहा, आ रहा है सर. हाँ तो लिखो, लिख लिया, तो क्या करता है हाँ सर. पॉजिट्रॉन, बैटरी से एनर्जी लेता है, ठीक है, तो लिखो, हाँ सर. एंड अगेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी, एंड अगेन एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी, बैटरी. ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर. अब सुनो, इसको साफ करें। हाँ सर. अब मान लो कि तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, लेकिन आइसोलेटेड है, कैसा है ये, आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब समझाया था मैंने, कि किसी चीज से कोई कनेक्शन नहीं है, हाँ सर. बिल्कुल आइसोलेट, जैसे कोरोना में लोग आइसोलेट कर दिए जाते हैं। हाँ सर. अब इस कंडक्टर को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, किसमें रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर. तो ये वाला जो एंड होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कॉर्नर. कहाँ लगता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा ना, हाँ सर. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में, और अब पॉजिटिव हाँ जिससे वो सर. इलेक्ट्रॉन निकला है, वो जो एटम्स हैं वो पॉजिटिव होके यहाँ हो जाएंगे, तो ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। इधर आप क्या लिखोगे, आइसोलेटेड, क्या लिखोगे, आइसोलेटेड. एक तो आइसोलेटेड हो गया, और एक मान लो आपने कंडक्टर लिया, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज भागना चाहता है, क्या चाहता है, क्या भागना चाहता है, चाहता. भागना चाहता है। तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं अर्थ से, तो ये आइसोलेट है कि नहीं है, अब ये, अब तो नहीं है ना आइसोलेट, अरे अब तो हाँ सर. आइसोलेट नहीं है ना, अब तो अर्थ से कनेक्ट कर नहीं है. दिया ना, तो ये वाला तो नेगेटिव चार्ज ही नहीं हाँ आएगा सर. भाई, ये नेगेटिव चार्ज तो यही रहेगा, नहीं आएगा. ठीक है, ये नेगेटिव तो यही रहेगा, और ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव. और ये पॉजिटिव अर्थ में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, अर्थ में,
दिस में चला पॉजिटिव विल जाएगा। ट्रांसफर टू अर्थ। तो लिख देना यहाँ पर, ये अर्ध कंडक्टर है, ये अर्ध EARTH डी, ये कौन सा कंडक्टर है? अर्ध, ये अर्थ है, ठीक है, HED हाँ है, सर। और ये आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड में तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दिखेगा, लेकिन अगर ये अर्थ है तो उस समय इसका पॉजिटिव चार्ज पूरा अर्थ में चला जाएगा, तो नेगेटिव दिखेगा। क्या दिखेगा? ये नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज विल ट्रांसफर टू अर्थ। ठीक है, लिख दिया? हाँ सर। तो लिखो द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्टर क्या होती है? क्वाइट हाई। क्या होती है? क्वाइट हाई। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैंने क्या स्मॉल n बताया था? हाँ सर बताया था। अगर मान लो कॉपर के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, सही है? हाँ सर। ठीक है, तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे? एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो लिखो इफ इन कॉपर if one free electron from each atom, if one free electron from each atom, then total number of free electrons in one mole में कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे ना? हाँ सर होंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोल होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 हाँ इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 23। हाँ सर। इतने एटम होंगे, और जितने एटम होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन फ्री करा ना, 10 की 23 है ये। हाँ सर। तो इसका मतलब एक मोल से इतने इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री, अगर हर एटम एक इलेक्ट्रॉन करेगा फ्री को। और मान लो 2 कर दे, 3 कर दे, तो उतना गुणा करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, क्यों भाई? हाँ सर। तो ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोल इफ ईच एटम हैविंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर। अब लिखो एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट रेस्ट। ध्यान रखना, कंडक्टर में ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन शांत है, इलेक्ट्रॉन भग रहे हैं इधर से उधर। हाँ सर। मान लो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, हाँ इसमें सर। हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, समझे? कोई बैटरी नहीं अच्छा। लगाई, यानी करंट तो होगी नहीं, ये तो कन्फर्म है। हाँ सर। और जब करंट नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन तो भाग रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे। ये कंडक्टर है भाई, ठीक है। हाँ सर। तो कुछ इलेक्ट्रॉन सब रैंडमली भागते, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, कोई राइट हाँ लेफ्ट में सर। भाग रहा है, कोई राइट में भाग रहा है, यानी रैंडम है। यानी ऐसा कर सकते हाँ हैं सर। कि जितने इलेक्ट्रॉन मान लो लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, उतने ही राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। राइट से लेफ्ट। इसका मतलब किसी क्रॉस सेक्शन से नेट इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं। मान लो एक गेट है, सुनो, हेलो हाँ सर। हेलो, अब एक गेट है, उसमें से ही आदमी को आना है और उसी में से जाना है, ठीक है। हाँ सर। अब जो, सुनना मेरी बात को अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। तो 2 रूम के बीच में गेट लगा हुआ है वो, है ना? हाँ एक सर। ही गेट है, एक ही गेट है। उस रूम में मान लो 20 आदमी है और इसमें भी 20 आदमी है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। समझ रहे हो बात को? सिचुएशन मन में क्रिएट हो जाती है ऐसी जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर। 2 रूम है, 2 रूम के बीच में एक गेट लगा हुआ है, यानी आदमी केवल हाँ उसी के सर। अंदर से जा सकता है और आ सकता है, और दोनों रूम में 20-20 आदमी है,
ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं है? हाँ सर। तो अब जितने आदमी एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर होंगे तो दूसरे से उतने रूम में दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं हमेशा 20-20 रहेंगे ना। हाँ सर रहेंगे। तो अगर वो कोई पूछा जाए कि इस गेट से नेट कितने आदमी ट्रांसफर हुए तो वो क्या बोलेगा? 0। हाँ सर 0। नहीं समझे, एक डायरेक्शन में थोड़ी हुए, एक कुछ इधर जा रहे थे कुछ अपोजिट जा रहे थे। तो ऐसा ही इसमें भी होता है। तो अगर मान लो रूम टेम्परेचर पे कोई कंडक्टर है और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में घूमते हैं। तो लिखिएगा एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट रेस्ट। अगली मीटिंग स्टार्ट होगी तुरंत, है ना? हाँ सर। हाँ, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट रेस्ट बट द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। यानी अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन ने, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मैच कर गई ना। हाँ सर कर तो लेगी। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहा इलेक्ट्रॉन का जब रूम टेम्परेचर है तो? 0 रहा ना। हाँ सर। तो रूम टेम्परेचर पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। 0। ठीक है, तो दोबारा वहीं आ गया जहां चार था। ठीक है, हाँ सर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग अ सेक्शन इज 0। ठीक है, हाँ सर। लेकिन जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, इसको मिला देना इससे, लेकिन जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, क्यों भाई? हाँ सर। तो वही इलेक्ट्रॉन चलता तो इसी स्टाइल में, वही जिगजैग, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, वो इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आगे दे देता है। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगा तो लेफ्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा ये बताओ, चला तो बहुत सारी डिस्टेंस है वो, क्यों? हाँ सर। जैसे तुम कहीं भटक जाओ, क्या हो जाओ? भटक जा। मान लो तुम बॉम्बे गई, ठीक है, हाँ। तो बॉम्बे में क्या होता है, जो ऑटो वाले होते हैं या जो कैब वाले होते हैं, ठीक है, हाँ सर। तो जैसे तुम्हें जाना है, मान लो अब स्टेशन से उतर के, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी जगह क्या है, तुम्हें जगह का नाम मालूम है बस। तुम्हें हाँ जगह सर। का नाम मालूम है, नाम और मालूम है। वो जगह जो है एक्चुअली स्टेशन से कुल 10 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 10 मीटर। 10 मीटर। लेकिन तुम्हें मालूम ही नहीं है कहाँ है ना। हाँ सर। उस समय तो कोई गूगल मैप तो चलता नहीं था भाई, हाँ जीपीएस लगा सर। लो। तो तुमने एक ऑटो वालों से कहा मैं फलानी जगह जाना है, तो वो समझ जाएगा भी ये तो बगल में ही 10 मीटर दूरी पर है, उसको मालूम नहीं है, इसका मतलब ये नया है। ठीक है, हाँ सर। तो वो मांगेगा भाई 300 रुपए लगेंगे, तो आप बैठ गए। वो दुनिया भर में हाँ घुमाएगा सर। आपको, हाँ ठीक है, सर। पूरे बॉम्बे में घुमाएगा और फाइनली वो 10 मीटर पे लाके छोड़ देगा। हाँ सर। तो उसने क्या करा, आपको जिग जैग घुमाया हाँ सर और वहीं पर और लेके आया। डिस्प्लेसमेंट वहीं लेके थोड़ा सा दिखा दिया। ठीक है, हाँ सर। ऐसा ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जरा सा हुआ ना, हाँ सर। और समय ज्यादा लगा बहुत। हेलो, समय तो ज्यादा लगा ना। हाँ सर लगेगा। आपका जो कैब था वो 40 और 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था, तो उसकी हाँ स्पीड तो सर। 50 है, उसकी स्पीड तो हर जगह 50 है, क्यों भाई? ठीक है ना। हाँ सर है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी की, तो वो क्या आएगी? 10 मीटर अपॉन 3 घंटे। हाँ सर आएगी। और 10 मीटर अपॉन 3 घंटे एवरेज वेलोसिटी क्या आई? बहुत कम आई ना। हाँ सर। तो यही जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन के केस में, ये मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर में आती है। क्या आती है? मिलीमीटर पर सेकेंड। जबकि उसकी जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, दिख रही है?
हाँ अरे सर दिख रही है। जैसे कैप भाग रहा है, समझ लो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो वो जो स्पीड होती है वो 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। कितनी होती है? 10⁶ जबकि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर की होती है? मिलीमीटर पर सेकंड की। पर सेकेंड। समझ में आया? हाँ सर आ गया। मिलीमीटर समझती हो ना? हाँ सर। 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट होता है ना मिलीमीटर, हाँ सर मिलीमीटर। और 1 मीटर का 1000वां पार्ट होता है। हाँ सर। अब सुनते आना अच्छी तरह, मेरी बात को जवाब देना। तुम्हारे घर की ट्यूबलाइट जो लगी है, ठीक है, हेलो, हाँ सर। और स्विच लगा है, लगा है स्विच। हाँ सर लगा है। स्विच और ट्यूबलाइट के बीच का गैप मान लो 2 मीटर है। 2 मीटर माने 6 फीट, ठीक है। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 मिलीमीटर पर सेकंड। कितनी है? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये बताओ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। हाँ सर। तो उसको 2 मीटर चलना है ना इलेक्ट्रॉन को, हाँ सर चलना है। तो कितने मिलीमीटर चलना है? 2000 मिलीमीटर चलना है ना। हाँ सर चलना है। स्विच से ट्यूबलाइट तक की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो कितना चलना है उसको? 2000 मिलीमीटर चलना है ना। 2 मिलीमीटर। चलना है ना 2000 मिलीमीटर। हाँ सर। तो हर मिलीमीटर को चलने में कितना सेकंड लग रहा है? 1 सेकंड। हाँ सर। तो 2000 मिलीमीटर चलने में 2000 सेकंड लगेंगे। हाँ सर लगेंगे। तो 2000 सेकंड का मतलब करीब हो गया 33 मिनट, 33 मिनट। कितना हो गया? 33 मिनट्स। 2000 सेकंड को 60 से डिवाइड कर दो, 33 आएगा हाँ सर। अप्रोक्सीमेट। तो 33 मिनट का मतलब आधे घंटे से ज्यादा। जल्दी बोलो, थर्टी हाँ थ्री सर। मिनट का। तो जब तुम स्विच को ऑन करो तो आधे घंटे तक इंतजार करो, वहां खड़े होगे, तब जाके ट्यूबलाइट जलेगी। हाँ सर। ऐसा करना पड़ता क्या? नहीं, कैसा होता है? जब ऑन किया तो चालू हो जाती है मतलब चालू हो जाती। तो एकदम। भाई कैसे कैसे चालू हुई है? और तुम जानते हो कि बगैर इलेक्ट्रॉन के मोशन के तो हो ही नहीं सकती है। अब हाँ सर। एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बहुत बड़ी फील्ड है, क्या है? फील्ड है बहुत बड़ी। और फील्ड में घास लगी हुई है, ठीक है। हाँ मतलब जो सर। जो पार्क होता है उसमें घास लगी होती है ना, तो घास में पानी देते हैं लोग, गार्डनर होते हैं ना। हाँ सर। तो बहुत बड़ी पाइप होती है ना, बहुत बड़ी पाइपलाइन, हाँ सर होती है। ठीक है। और उसको जुड़ी रहती है वो किसी टैप से, किसी नल से जुड़ी रहती है। हाँ सर। अच्छा, जब वो पानी को ऑन करते हैं वहां से टैप से, तो पानी तुरंत निकलने लगता है उस हाँ सर हॉस पाइप से, या टाइम लगता है? निकलने लगता है तुरंत। तुरंत। हाँ सर। ध्यान रखना, हॉस पाइप से तुरंत पानी जब ही निकलेगा जब पूरा हॉस पाइप पहले से भरा होगा। ये समझिए। हाँ सर। और जैसे ही तुम ऑन करोगी तो पाइप, तो तुरंत आगे वाला पानी तुरंत बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना। और हाँ अगर सर। पहले से ही वो हाँ पूरा निकल। खाली है, तो पहले टैप से पानी निकल पहले के पाइप भरी। पहले पाइप भरेगा, फिर निकलेगा ना। हाँ सर। और उसके बाद तुमने पानी भर गया वो टैप के अंदर, उसके अंदर हॉस पाइप पे पानी भर गया, ठीक है। अब तुम ऑन करोगी तो तुरंत चालू हो जाएगा ना। हाँ सर हो जाएगा। ऐसा ही इसमें होता है। उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं। क्या है वो इलेक्ट्रॉन? पूरे भरे हैं। और जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो आपकी ट्यूबलाइट से कनेक्टेड है, वो भी तुरंत मोशन स्टार्ट कर देता है। नहीं समझे? समझे कि नहीं? हाँ सर। ध्यान रखना, वो वाला इलेक्ट्रॉन तो पक्का है कि 33 मिनट बाद ही पहुंचेगा। उसके कारण जो करंट हाँ होगी सर। वो 33 मिनट बाद ही होगी। लेकिन करंट तुरंत स्टार्ट होने का रीजन है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स पहले से। स्टार्ट मोशन साइमल्टेनियसली, सब एक साथ स्टार्ट करते हैं। एंड दिस कंडक्टर इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। नहीं आया? आ गया सर। गुड। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर की होती है? मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है ना। हाँ सर। तो लिखिएगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन
is much greater than much greater than the velocity of electron. जो स्पीड होती है वो करीब 10 की पावर 4 ऐसे मान सकते हैं, 10 की पावर 4 टू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की ऑर्डर की होती है। ये क्या हाँ है? सर। इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, समझे? ये 10 की पावर हाँ 5 सर। कितनी हो गई? 1,00,000 हो गई हाँ सर, हो गई। मीटर पर सेकंड। इस ऑर्डर की होती है स्पीड, लेकिन जो एक्चुअली वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। किसकी होती है? मिलीमीटर। अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ। तो जो देखो, एंड एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, तो कल मैंने आपको सब बताया था ना, ये याद है? हाँ सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो,